جی تو میرے ساتھ موجود ہیں رمیسہ جو کہ بیٹی ہیں شہید اختر علی صاحب کی، ساتھ میں ان کی زوجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہید عمر شمع کے والد صفدر صاحب اور ان کی مدر راحیلہ صفدر صاحبہ۔ میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور پوری قوم کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کو سلام، اس لیے بھی کیونکہ آپ لوگوں کی قربانی اور آپ لوگوں کے جو بچوں نے اور آپ کے ہسبینڈ نے جو کر دیا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہم تو دعا میں مانگتے ہیں۔ بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک آج جو خوشحال ہے، آزاد ہے، صرف اور صرف انہی شہداء کی محنت سے۔ آج غزہ میں جائیں، پتہ کریں، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، صرف اور صرف کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ جذبات تو ان کے پاس ہے، مسلمان ہے بے شک، لیکن ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ لوگ سہارے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ ہم جدھر بھی جائیں ہم اپنا خوشحال ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، آپ کو کچھ نہیں مسئلہ نہیں ہے، آپ کو آپ ہندوستان میں جائیں، لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا وہ ان لوگوں کو ایسے جوتوں سے مار رہے ہیں، غلامی۔ تو دیکھ پوری دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں ان کی ہمت، جرأت، ولولے، جو دیکھیں تعداد میں تو ہمارے دشمن سے کم تھی، لیکن ان کی بہادری کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی۔ پھر آپ نے دیکھا بھی کہ بنیاد المرصوص میں کیسا ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو مار پڑی۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی جب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی حالیہ جنگ تھی، اس میں ہم جو عام شہری ہیں، ہمارا جوش و ولولہ اتنا اوپر تھا، تو آپ لوگ جو کہ شہداء کی فیملی میں سے تھی، آپ لوگوں کا جوش و ولولہ کیسا تھا؟ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو ہمیں اس چیز کا یقین تھا کہ دشمن ہم سے بچے گا نہیں، اور ہماری جو پاکستان آرمی کی، نیوی کی، ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وہ ماشاء اللہ دنیا سے نمبر 1 ہے، اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ہم دشمن کو ایسا نصر نابود کریں گے کہ ہمیشہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر دشمن نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور بارڈر پہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے سفید جھنڈے لہرا دیے کہ ہم بس ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن جو پاکستان کے جوان تھے انہوں نے جو اپنا جذبہ ایمانی دکھایا، اپنی قوت دکھائی، اور اپنی صلاحیت سے، جہاز تو ان کے پاس بھی تھے، جہاز وہ بھی لا سکتے تھے، لیکن جو ہماری فورسز نے، ان کی جو تربیت تھی، ٹریننگ تھی، اور جو ان کے پاس جذبہ ایمانی تھا، تو اس وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ویسے آپ لوگوں کی کیا تھے جب آپ لوگ دیکھ رہے تھے تمام جو سچویشن چل رہی تھی وار کی؟ ہمارے پاکستان اس لیے کامیاب ہے کیونکہ ہمارے جو فوجی وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں وہ موت سے ڈر گئے۔ ہمارے جو جوان تھے جب وہ لڑنے گئے تو ان کو پتا تھا کہ یا تو ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، یا تو کرنا ہے یا تو مرنا ہے، اینڈ اسی وجہ سے پاکستان کامیاب ہوا۔ تو یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے فوجیوں کے اندر بھی اور ہمارے پاکستانیوں کے اندر بھی ہے کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، ہم لڑتے ہیں۔ تو پاکستان اسی لیے محفوظ ہے، آگے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جب جنگ کی سچویشن ہوئی، ویسے بھی 14 اگست آتا ہے، کوئی اور اسپیشل ڈے آتا ہے، ہمارے جذبے ویسے بھی بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، وہ اور ہائی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دوبارہ سے پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے جینا ہے، ہمارا ملک جو ہے اسلام پہ بنا ہے، اور وہی کہ ہمارے ارادے کبھی مضبوط، وہ کمزور نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ وہی مضبوط کے مضبوط ہیں۔ اب جیسے میرے فادر شہید ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا گھر میں ایک شہادت ہو گئی تو آپ ڈر گئے ہوں گے، نہیں ہم نہیں ڈرے، مجھے بھی جانا ہے فوج میں، میرے بہن بھائیوں کو بھی وہی جذبہ ہے، ہم نے بھی جانا ہے، جو میری مدر کا بھی وہی جذبہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی وہاں بھیجنا ہے، ہم لوگ نہیں ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہے یہ دیکھیں نا، یہ ملک کی جب شہید کی جب بیٹی بولتی ہے تو کیسے بولتی ہے، جب اس کے پیرنٹس بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں۔ مجھے اتنا فخر ہو رہا آپ کو سن کے۔ مجھے بتایا نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا جذبہ ہے؟ جیسے آپ کے بچے تو ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے، اور ماشاءاللہ 6 بچے آپ کے۔ بس پاکستان میں ہمارا خون شامل ہے، اور میرے جذبہ ہے کہ بس میرے شوہر شہید ہے، میں باہر کرتا ہوں، اور میرا اور جذبہ ہے کہ میرے بچے انشاءاللہ سارے جائیں گے فوج میں، اور ہم لوگ اور قربانی میں تیار ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے شوہر قربان ہو گئے، ہم ڈرتے نہیں، وہ بچہ پاکستان آباد رہے، بس ہم خوش ہیں، اور ہم بس صحیح سلامت بس زندگی رہ جاتے ہیں۔ اللہ لمبی زندگی دے۔ میں دیکھیں ایک جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو پیچھے سے بنانے والے، اس کی سپورٹ میں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی فیملی والے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بچے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ جو ہمارا فوجی سپاہی ہے اس کا یہ جوش و ولولہ ہے، اس کی فیملیز کا جوش و ولولہ، میں قربان جاؤں ان کے، کہ جن کے
वो कहते हैं कि शोहदा का खून जो है वो शामिल है हमारी इस आज़ादी में। तो आप जब इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना तो शुक्रिया अदा किया करें लोगों का भी। मुझे बताएं आंटी, जब आपका बेटा शहीद हुआ था तो 8 माह पहले ही शादी हुई थी। जी 8 माह पहले शादी। तो ये वैसे कितना उस वक्त कितना मुश्किल हो गया था फिर आपकी बहू के लिए? ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल जो नौबिया था आपकी बहू थी, इसके लिए भी वो बहुत मुश्किल था। 40 दिन बाद में बेटी हुई। 8-9 महीने की शादी थी। तो बस बेटे ने आर्मी में जाना था, शहादत लेनी थी, शहादत का रुतबा लिया। किसको शौक था ज़रा, किसका ख्वाब था ज़रा था किसको उसको फौज में अपना भेजना? ख्वाब था। उसका ये था जब भी घर आता था तो वो कहता था कि अम्मी, या सबको कहता था बस खाएं पिएं और एंजॉय करें जिंदगी को। मेरा कह रहा था अम्मी मेरा कोई पता नहीं है मुझे कब शहादत मिल जाए। इस तरह उसका ये कहना था कि वो कभी मैंने बोलना कि तन्हा सारी ऐसे अजाड़ते थे तो कह रहा है, कहता है फौजियों का कोई पता नहीं होता, हमारा सर पे कफन बांधा होता है, हमारा कोई पता नहीं खाए आज। वो एक जज्बा मानी है उनके दिल में जो अंदर उनके है। शादी खुद कराई, मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हुई थी तो इसने बोला अभी मैं फारग हूँ, मेरी तो करें। तो फिर हमने उसकी शादी कर ली, अल्लाह को ऐसे मंजूर था। और आपने थी पोती का नाम क्या रखा? मनाहल उमर। मनाहल उमर। उसने खुद मुझे उसकी याद है। हाँ। तो फिर शादी से पहले उसने खुद कहा कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका ये नाम रखूंगा, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम मनाहल रखूंगा। जी जी। तो वो फिर उसको अल्लाह की मंजूरी नहीं था, वो पहले इस दुनिया से चले गए। और लास्ट टाइम जब वो अपनी वाइफ के साथ उसने बर्थडे मनाई अपनी, तो उसको कहता है ये मेरी और आपके साथ पहली और आखिरी बर्थडे है। कई बातें ऐसी करता था, बताया गया। तो आंटी आपको डांटती नहीं थी? मैं डांटती थी। मेरे साथ पास बैठ के कहता था कि आपको इतना पैकेज मिलेगा, आप याद करेंगे, मेरे बाद आपको याद ही नहीं आएगी। फिर उसको मारना तो क्या बातें कर रहे हो इस तरह की। और फिर मैंने शहीद हो जाना है, ऐसे करता दोस्तों को भी। थी आपके बेटे? हाँ। और फिर जब शहादत से पहले उसको ख्वाब में मतलब मुझे सफ़ेद कपड़ों वाले उठा रहे हैं, मेरे सफ़ेद कपड़ों वाले मुझे रात। एक दोस्त उसका लाहौर में होता था, तो उसने बोला उमर कब छुट्टियाँ आओगे? उसने कहा यार मुझे लगता है कि मैं मुश्किल है शहीद हो जाऊँगा फिर आऊँगा। और फिर जब लास्ट मेरे पास आया ना सब आखिरी बार, तो उस वक्त ना कोई शबरात थी, शब मराज थी, अपने कमरे में जाके नफल पढ़ के रो के दवाएं करता रहा। बहुत है, पता नहीं कौन कौन सी दवाएं उसने। और उसके कितने अरसे के बाद हमें जामे शहादत? 22 दिन बाद, 22-25 घर आया था। वो वजीरस्तान में जब होते हैं ना तो उनको 2 महीने बाद 10-20 दिन की छुट्टी देते हैं, आते जाते रहते। 25 को गया घर से और 14 अक्टूबर को उसकी शहादत हो गई है। और कितनी दुआएं, क्योंकि बार बार जुम्मे रात को पैदाइश हुई थी, जुम्मे रात को दफन हुआ। और बस अपने मुंह से सब चीज़ें करता, क्या याद करो, बहन को भी, अम्मी भी, भाई को भी। उसको नज़र आ रहा था कि मैंने चले जाना। लेकिन एक चीज़ मैं दिया, हम मुसलमान भी मुस्लिम इस चीज़ का मजबूत पहले भी थे अब भी हो गई है कि जो इंसान की जो मौत है या शहादत है वो जिस जगह पे है उस जगह पे उसने पहुंचना है, तब उसकी रूह कब्ज़ होगी। उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, खुद उस जगह पे चला गया शहादत। उसने पहले, क्योंकि इनका 2 साल का टेन्योर था वहाँ पे आड़ एरिए का, तो लास्ट 1 वीक रह गया था आने में। तो इसने आना था, पहले आना था, इसकी जो पार्टी थे, पार्टी वाइज आते हैं ये लोग ना, तो पहले इसने आना था 11 को ना, तो इसका नाम 11 से निकाल के तो 19 वाली पार्लियामेंट डाल दिया गया कि आप ना पीछे रह जाएं, बाकी चीज़ें भी जो सारी समेट के तो बाद में आना। तो उसको उसकी शहादत उसको पीछे लेके जा रही थी, वो नहीं जा रहा था। हमें बहुत झटका लगा, मैंने बोला ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो उसकी शहादत उसको वहाँ जा लेके जाएगा। उसके बाद दूसरा उसने जिधर गया उसने नहीं जाना था, उसने सीओ ने मना किया कि तुमने जो फलां कैप्टन जिशान है वो जाएंगे मेरे साथ ना। तो उन्हें कहा मैं जाऊंगा। जिशान था वो 10 साल अकेला था, अपने माँ बाप का बेटा ना, 3 का 4 बहनों का 1 भाई था। तो उसने कहा, उमर कहता था, अक्सर उससे कहता था जिशान यार मैं अगर चला गया तो मेरा तो एक पीछे भाई है घर को संभालने वाला, तुम्हारा तो कोई नहीं है। तो वो फिर जिशान नहीं गया। तो वो फिर जब वहाँ जिस जगह पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सीओ ने कहा कि यार उमर तुम कैसे आ गए हो? मैंने तो जिशान को गया था। उन्हें बोला सर कोई बात नहीं, मेरे कुछ 2-4 काम थे, मैंने चल मैं निपटा लेता हूँ। तो वापसी पे जब रास्ते में आ रहे थे तो
रास्ते में उनकी शहादत हो गई, आईडी ब्लास्ट हो गई। कितना एहसास वाला आपके बेटे के उसको आईडी और जी, जी, करते बड़े अफसर को हिट करते हैं, सीईओ को करना था हिट उन्होंने, लेकिन ये जब शहादत का टाइम आया तो उमर की गाड़ी आगे हो गई, उसकी गाड़ी पीछे हो गई। ये लोग शहादत थी पांच ना, लोग शहादत थी, देखिए। ये लोग शहीद आप हुए ये थे। देखिए कि कैसे जो आपने कहा ना कि आके 22 दिन पहले घर में जो दुआएं की हैं, तो कैसे उन दुआओं ने हर चीज़ वो असबाब बनाए, क्योंकि जैसे आपने कहा ना बार बार आके वो शहादत के वाले से बात करते थे, बार बार करता। तो देखिए पता नहीं क्या वो जज्बा था और सब चीज़ें उन्होंने आपको अपनी खुशियाँ भी दिखा दी। वो ओपनली कहते थे अम्मी हमारा कोई पता नहीं है, खाएं एंजॉय करें बस। आप लोग की जब अब आपके जो हस्बैंड और आपके जो फादर से जब आखिरी बात हुई थी, तो वो कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? जो लास्ट हमारी बात हुई थी ईद को कुछ दिन ही गुजरे थे और अब्बू की ड्यूटी थी। बेसिकली मुझे जो है वो छोड़ने जाते थे, जो है कोचिंग जब जाती थी मैं तो अब्बू के साथ ही जाती थी, तो वेट होता था अब्बू आएंगे। तो उस ईद दिन पर आए थे वो? जी ईद पे थे। तो जो जिस दिन मुझे मतलब जाना था उस दिन भी मतलब अब्बू आए और अब्बू कहते हैं नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फिर से जाना है। वो आए थे दोपहर को, फिर चले गए एंड फिर वही वेट था अब्बू आएंगे तो अब्बू के साथ जाएंगे, जर्नल्स लेने हैं, स्कूल होता था, कॉलेज होता था, तब तो हम अब्बू के साथ ही जाते थे, स्टेशनरी वगैरह। तो उसी इंतज़ार में मतलब ये न्यूज़ आई कि अब्बू शहीद हो गए। तो मुझे तो जैसे उन्होंने बोला एक चीज़ कॉमन कि मेरे अब्बू की भी ड्यूटी नहीं थी वो भी किसी और की ड्यूटी पे गए थे। तो जो शहादत होती है ना वो आपको खुद बुला लेती है। फिर मेरे अब्बू ने कुछ अर्सा पहले ही उम्रा किया था और मैंने जब उनसे पूछा कि आपने उम्रे में क्या दुआ की तो मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने बताया नहीं और कुछ अर्से बाद उनकी शहादत हो गई। तो आप खुद ही समझ गए होंगे तो शहादत की दुआ की थी। तो उनके अंदर बहुत जज्बा था माशाल्लाह, उनके अंदर वो जो वतन से मोहब्बत थी ना जो उन्होंने हमारे अंदर भी बताया कि हम तो बच्चे थे लेकिन अपने अब्बू को देखते थे ना मिली नगमे गा रहे हैं। वो जो 14 अगस्त आती थी तो हम लोग झंडे लगाते थे, अब्बू कहते थे चलो सब उठो बेदार हो जाओ, पूरे घर में झंडे लगेंगे। हम लोग जाके उसकी प्रॉपर शॉपिंग करते थे। हमारे घर में प्रॉपर सेलिब्रेट होता है, अभी भी 14 अगस्त प्रॉपर सेलिब्रेट होता है। तो ये सारा जज्बा मेरे अब्बू की तरफ से ही हमें मिला है। उन्होंने इस चीज़ को हमारे अंदर जो है कायम रखा है, अभी तक जो है वो जज्बा रखा हुआ है। और शहादत की तो वो अक्सर बात करते थे, मेरा भी हमेशा से था। जैसे एक बार न्यूज़ आई थी कि कोई शहीद हुआ था तो मेरे अब्बू कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी न्यूज़ आएगी, तो मैंने बोला इंशाल्लाह मेरी भी आएगी। तो अम्मी ने गुस्सा किया था कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन वो था ना कि अब्बू कहते हैं कि इंशाल्लाह, मैंने भी बोला था इंशाल्लाह। तो अब्बू को तो चलो उनको नसीब हो गया इंशाल्लाह अब अल्लाह ने मेरे नसीब में किया तो, लेकिन जाहिर है मेरी अम्मी डरती हैं। थोड़ा सा तो होता है ना कि औलाद का भी और शौहर के जाने का भी, जो चला जाता है उसका गम तो वो तो वहीं पे है, वो गम तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो फख्र है उसके साथ वो उससे ज़्यादा है। क्योंकि देखिए मैं अभी आपने तस्वीर पकड़ी तो वही बात है, यही जिंदा है, बिल्कुल जिंदा हो जावेद तो यही है, सही बात। मौत तो हमें आनी है, मौत तो हमें आनी है। मौत तो हमें शहीद तो आनी है। जिंदा हैं, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल पीते हैं, खाते हैं पीते हैं और उनको रिस्क पहुंचता है। तो जब आपकी बेटी तो माशाल्लाह से वो आपके सारे बच्चे ऐसे ही हैं, उनका जोश वलवला ऐसे ही है सारों का जज्बा। और जब अपनी ऐसी बातें करती हैं कि शहादत की, तो फिर आपके क्या रिमार्क्स होते हैं इस पे? मैं फख्र करती हूँ बच्चों पे। आज मैं कहती बस आपका अबू शहीद है और आपका अबू कितना जज्बा था पाकिस्तान नेवी के लिए, हमारा खून शामिल है। इंशाल्लाह मेरे बच्चे में जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसा जज्बा रख के। हाँ नो हम नहीं डरते। दुश्मन का मैंने हम लोगों को बोल दिया कि हमारा बच्चे सारे बच्चा हमारे पाकिस्तान में कुर्बान है और इंशाल्लाह ऐसे होगा मेरे बच्चे जाएंगे उधर नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में। सारों का शौक है, हमसे ज्यादा अम्मी का शौक है। अम्मी हमें रिमाइंड कराती रहती हैं वर्दी पहननी है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैं इससे बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अब समझ में आ रही है कि मेरे जोश और जज्बा, जो मुस्कुराहट जैसे जब मैं इनसे बात भी कर रही हूँ, भाई ये इस मुस्कुराहट के सदके हम और इनके सदके हम। अभी मेरा छोटा बेटा मेरे साथ आके उधर सामने मैं कमांडर बनूंगी और अबू की जगह में मैं जाऊंगी। अभी 8 क्लास में अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साथ जनाब शहीद उमर शीमा के वालिद यहाँ पर मौजूद थे। मेरे साथ शहीद अख्तर अली की बेटी और उनकी ज़ौजा यहाँ पर मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।